سارے حادثات اس دنیا میں ایسے ہوئے ہیں جو بڑے بڑے دردناک تھے. کربلا شریف جیسے تو نہیں لیکن ان کا بھی درد اپنی جگہ ایک الگ مسلم ہے. اگر ان واقعات کو آپ کے سامنے رکھ دیا جائے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑیں گے. آپ دیکھیں غرناطہ اسپین کا جو معاملہ ہوا تھا, آخری جو امیر رہا جوان بیٹا میدان کربلا میں کھڑا ہو, آج بھی ایسا لگتا ہے جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری شان شجاعت کے ساتھ میدان کربلا میں کھڑے ہوں. آج تک کوئی کربلا کو تو نہیں بھلا پایا, آج تک کوئی شہیدان کربلا کو تو نہیں بھلا پایا. تو سنو, جب جان اپنے بچاؤ کے لیے دی جاتی ہے, یہ علماء کرام کی توجہ, جب جان اپنے بچاؤ کے لیے دی جاتی ہے تو وہ تاریخ میں نقش ہو کے رہ جاتی ہے. اور جان جب کسی نظام کو بچانے کے لیے دی جاتی ہے, جان جب کسی مقصد کو بچانے کے لیے دی جاتی ہے, تو جب تک وہ نظام رہتا ہے اس شخصیت کا نام زندہ رہتا ہے. جب تک وہ قانون رہتا ہے اس شخصیت کا نام زندہ رہتا ہے. جب تک وہ آئین رہتا ہے اس شخصیت کا نام زندہ رہتا ہے. بچاؤ کے لیے نہیں دی ہے. کربلا میں جو جان شہادت حسین نے دیا ہے وہ اپنے بچاؤ کے لیے نہیں دیا ہے, بلکہ نانا کی شریعت کی خاطر دیا ہے, قرآن کی عظمت کی خاطر دیا ہے. جب تک نانا کی شریعت رہے گی حسین کا نام زندہ رہے گا. جب تک قرآن رہے گا حسین کا نام زندہ رہے گا. جب تک مسجد سے اذانوں کی آواز آتی رہے گی حسین کا نام زندہ رہے گا. جب تک منبر سے خطبے پڑھے جاتے رہیں گے حسین کا نام زندہ رہے گا. جب تک مسجد کے اندر نمازیں ہوتی رہے گی حسین کا نام زندہ رہے گا. اس لیے کہ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے, اس کی حکمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے. سجدے تو اوروں نے کیے, ان کے الگ انداز ہیں, حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر سبھی کو ناز ہے. جنہیں صدیق کی صداقت کا پیکر کہا جاتا ہے وہ حسین, جنہیں فاروق اعظم اشداء علی الکفار کی شمشیر برہنہ کہا جاتا ہے وہ حسین, جنہیں رحم و کرم میں ذوالنورین جامع القرآن کا مظہر عدم کہا جاتا ہے وہ حسین, جنہیں مولا علی شیر خدا کی شجاعت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ہاں ہاں وہی حسین جو علی کے نور نظر ہے. ہاں ہاں وہی حسین جو وہی حسین جو امام حسن سے برادر ہیں. ہاں ہاں وہی حسین جو اسلامی لشکر کے سپہ سالار ہیں. ہاں ہاں وہی حسین جو شریعت کے محافظ ہیں. وہ حسین جو میدان شہسوار ہیں. حضرات گرامی, وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ علی کو فاتح بدر و حنین کہا جاتا ہے. علی کو فاتح بدر و حنین کہتے ہیں, حسن کو سبتے شہ مشرقین کہتے ہیں, اور وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس, کمال صبر رضا کو حسین کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. الحسن والحسین صفوت اللہ وعلی بعضهم لعنت اللہ. نبی فرماتے جب میں معراج کو تشریف لے گیا میں نے جنت کے دروازے پر کلمہ شریف لکھا ہوا دیکھا, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نبی فرماتے اور آگے لکھا ہوا تھا علی یحب اللہ, علی اللہ کا محبوب ہے, وفاطمہ خیانت اللہ, اور فاطمہ اللہ کی پسندیدہ بندی ہے. الحسن والحسین صفوت اللہ, حسن اور حسین اللہ کے چنندہ بندے ہیں. آگے لکھا ہوا تھا وعلی بعضهم لعنت اللہ, اور جو ان سے نفرت کرتا ہے, جو ان سے دشمنی رکھتا ہے, جو ان سے بغض رکھتا ہے, اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے بالکل زندہ دل مسلمانوں, میں علامہ عمران مصباحی کے مصباحی منزل میں تب تک گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جب تک ان کی اجازت نہیں ہوگی. میں علامہ کے دروازے پر جاؤں, اور میں تب تک گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جب تک علامہ کی اجازت نہیں ہوگی. میں نقیب اہل سنت کے گھر پر جاؤں اور میں دیکھوں ان کے دروازے پہ لکھا ہے نیاز منزل, میں تب تک اندر داخل نہیں ہو سکتا جب تک ان کی اجازت نہیں ہوگی. میں حافظ صاحب کے دروازے پر جاؤں, میں تب تک اندر نہیں جا سکتا جب تک حافظ صاحب کی اجازت نہیں ہوگی. اب مجھے بتاؤ اے حسین کا جلسہ سجانے والوں, جنت کے دروازے پر کس کا نام لکھا ہے؟ جنت کے دروازے پر میرے نبی کا نام لکھا ہے. جنت کے دروازے پر حضرت فاطمہ کا نام لکھا ہے. جنت کے دروازے پر امام حسن کا نام لکھا ہے. جنت کے دروازے پر امام حسین کا نام لکھا ہے. جب تک مصطفیٰ سے کہیں کہ ہماری شفاعت کرائیں گے,
जब हम इमाम हुसैन की अदाओं को अपनाएंगे, इमाम हुसैन के बताए तरीके पे चलेंगे, आओ जरा मैं इमाम हुसैन की जवानी के चंद गोशे आपके सामने रख दूं, फिर उसके बाद में इमाम हुसैन की शहादत से क्या पैगाम मिलता है वो पैगाम मैं आपके सामने देके रुखसत हो जाऊंगा। हजरात, कौन इमाम हुसैन है? बचपन आपने सुना होगा, बचपन तो आप बहुत सुनते रहते हो, लेकिन आज मैं आपको जवानी की एक झलक आपको दिखाता हूँ। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु सखी नाना के नवासे हैं, सखी बाप के बेटे हैं, सखी माँ के बेटे हैं, सखी भाई के भाई हैं। इमाम हुसैन की सखावत का आलम न पूछिए। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को एक बार हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से 10,000 दिरहम मिले थे। इमाम हुसैन घर लेकर नहीं गए, मस्जिद नबवी के दरवाजे पे जाकर के बैठ गए। आपका दोस्त आ गया, इमाम हुसैन से कहने लगा कि कुछ दिरहम की जरूरत रहती है, घर में कपड़े की भी, लिबास की भी जरूरत रहती है, आप ऐसा कीजिए कुछ दिरहम रख लीजिए। इमाम हुसैन बैठे हैं, इतने में एक साइल आ गया और आकर के कहता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे मेरी मदद कर दीजिए। इमाम हुसैन ने वो दिरहम उठाए और उसके हाथ में रख दिए और फरमाया जा ले जा। हजरात, 10,000 दिरहम आज के दौर में अगर उसकी कीमत को आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 लाख से ऊपर कीमत बैठती है। ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सखावत है। आज हम अगर किसी की मदद करते हैं तो आज मदद बाद में पहुंचती है, पहले हम उसके साथ फोटो खींच के इंटरनेट पे अपलोड करते हैं। अभी कोरोना काल के अंदर आपने ये मुसलमान के ऊपर हक है, वो बीमार पड़ जाए तो उसे देखने जाए, उसका इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में शामिल हो। ये मोमिन का मोमिन पे हक है। आज हम अमीरों के जनाजे में तो जाते हैं लेकिन गरीबों के जनाजे में नहीं जाते। अमीरों का जनाजा है तो दौड़ दौड़ के कांधा लगाया जाता है, और गरीब है तो अपने घर में आराम से बैठे हैं, उसके जनाजे के अंदर शामिल होने की कोई फिक्र नहीं है। याद रखो, सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई अगर गरीब है, पड़ोसी बता रहे हैं लोग, और पता लगा हो ये मैयत किसी अमीर की होगी जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग, जनाजे में शामिल हुआ करो। ये मोमिन का मोमिन के ऊपर हक है कि जब उसका इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में शामिल हो, अगरचे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। अगर मुसलमान है तो दुश्मनी भुला देनी चाहिए। आज हम सिर्फ जिक्र सुनते हैं अहले बैत का, आज हम सिर्फ जिक्र सुनते हैं करबला वालों का, लेकिन हम उनकी अदाओं को नहीं अपनाते, हम उनके बताए तरीके पे नहीं चलते। मैंने इमाम हुसैन का एक वाकया पढ़ा कि आप इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास में बैठे हुए थे और भी लोग बैठे हुए थे। अचानक से कोई ऐसी बात हो गई कि इमाम हुसैन बड़े जलाल में उठे, और वहां से ऐसे उठे कि लोग आपस में ये बातें कर रहे थे कि अब हुसैन नहीं आएंगे। इमाम हसन से कह रहे थे कि अब हुसैन नहीं आएंगे। हज़रात इकरामी, इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जानते थे अपने भाई के बारे में, और हुसैन अपने भाई के बारे में जानते थे। और यही वाक़े को मैंने एक किताब में इमाम हुसैन और मोहम्मद बिन हनफिया के ताल्लुक से पढ़ा है कि मोहम्मद बिन हनफिया के मजलिस से मेरे आका इमाम हुसैन बहुत जलाल के साथ उठ करके गए थे। लोगों ने कहा था कि अब हुसैन वापस नहीं आएंगे, अब हुसैन चले गए हैं, तुमसे नाराज हो नाना मुस्तफा से कह के हमारी शफाअत कराएंगे। जब हम इमाम हुसैन की अदाओं को अपनाएंगे, इमाम हुसैन के बताए तरीके पे चलेंगे, आओ जरा मैं इमाम हुसैन की जवानी के चंद गोशे आपके सामने रख दूं, फिर उसके बाद में इमाम हुसैन की शहादत से क्या पैगाम मिलता है वो पैगाम मैं आपके सामने देके रुखसत हो जाऊंगा। हजरात, कौन इमाम हुसैन है? बचपन आपने सुना होगा, बचपन तो आप बहुत सुनते रहते हो, लेकिन आज मैं आपको जवानी की एक झलक आपको दिखाता हूँ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सखी नाना के नवासे हैं, सखी बाप के बेटे हैं, सखी माँ के बेटे हैं, सखी भाई के भाई हैं। इमाम हुसैन की सखावत का आलम न पूछिए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक बार हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से 10,000 दिरहम मिले थे। इमाम हुसैन घर लेकर नहीं गए, मस्जिद नबवी के दरवाजे पे जाकर के बैठ गए। जरूरत रहती है, घर में कपड़े की भी, लिबास की भी जरूरत रहती है, आप ऐसा कीजिए कुछ दिरहम रख लीजिए। इमाम
हुसैन बैठे हैं, इतने में एक साइल आ गया और आकर के कहता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी मदद कर दीजिए। इमाम हुसैन ने वो दिरहम उठाए और उसके हाथ में रख दिए और फरमाया जा ले जा। हजरात 10,000 दिरहम आज के दौर में अगर उसकी कीमत को आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 लाख से ऊपर कीमत बैठती है। ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सखावत है। आज हम अगर किसी की मदद करते हैं तो आज मदद बाद में पहुंचती है, पहले हम उसके साथ फोटो खींच के इंटरनेट पे अपलोड करते हैं। अभी कोरोना काल के अंदर आपने देखा होगा कि एक महिला एक औरत, ये मुसलमान के ऊपर हक है, वो बीमार पड़ जाए तो उसे देखने जाए, उसका इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में शामिल हो। ये मोमिन का मोमिन पे हक है। आज हम अमीरों के जनाजे में तो जाते हैं लेकिन गरीबों के जनाजे में नहीं जाते। अमीरों का जनाजा है तो दौड़ दौड़ के कांधा लगाया जाता है और गरीब है तो अपने घर में आराम से बैठे हैं, उसके जनाजे के अंदर शामिल होने की कोई फिक्र नहीं है। याद रखो, सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई अगर गरीब है, पड़ोसी बता रहे हैं लोग, और पता लगा हो ये मैयत किसी अमीर की होगी जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग, जनाजे में शामिल हुआ करो। ये मोमिन का मोमिन के ऊपर हक है कि जब उसका इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में शामिल हो, अगर से वो दुश्मन ही क्यों ना हो। अगर मुसलमान है तो दुश्मनी भुला देनी चाहिए। आज हम सिर्फ जिक्र सुनते हैं अहले बैत का, आज हम सिर्फ जिक्र सुनते हैं करबला वालों का, लेकिन हम उनकी अदाओं को नहीं अपनाते, हम उनके बताए तरीके पे नहीं चलते। मैंने इमाम हुसैन का एक वाकया पढ़ा कि आप इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास में बैठे हुए थे और भी लोग बैठे हुए थे। अचानक से कोई ऐसी बात हो गई कि इमाम हुसैन बड़े जलाल में उठे और वहां से ऐसे उठे कि लोग आपस में ये बातें कर रहे थे कि अब हुसैन नहीं आएंगे। इमाम हसन से कह रहे थे कि अब हुसैन नहीं आएंगे। हज़रात इकरामी, इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जानते थे अपने भाई के बारे में और हुसैन अपने भाई के बारे में जानते थे। और यही वाक़े को मैंने एक किताब में इमाम हुसैन और मोहम्मद बिन हनफिया के ताल्लुक से पढ़ा है कि मोहम्मद बिन हनफिया की मजलिस से मेरे आका इमाम हुसैन बहुत जलाल के साथ उठ करके गए थे। लोगों ने कहा था कि अब हुसैन वापस नहीं आएंगे, अब हुसैन चले गए